lovely kids, welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I'm Dr. Pankaj Meglani, your biology teacher. और जैसे कि हर वीकेंड पर आपसे वादा रहा है, एक प्रॉमिस रहा है that I am here to give you tips, techniques, reminders, serve as an alarm clock so that your preparation is the best preparation in the country and you emerge as the NEET ranker. Not only from anywhere but from Akash Byju's, है ना? तो आज का टॉपिक है how to overcome exam fear. All my kids, especially the ones who are going to appear for NEET 2023, वो तो इससे गुजर ही रहे हैं. Some of you share your messages with me. I get all those messages, है ना? और जैसे कि उन messages का collective solution हमेशा हर हफ्ते हम निकालते हैं, आज सोल्यूशन निकाल रहे हैं उस अनसर्टेनिटी का, उस फियर ऑफ फेलियर का, जिससे आप नहीं हम सब गुजरते हैं, राइट? एंड दिस इज अप्लाइज टू पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2024 ऑल्सो. कोई बचा नहीं है इससे. एग्जाम फियर, अगर एग्जाम है तो एग्जाम फियर होने वाली है. अगर एग्जाम है तो एवरीबडी गोज थ्रू एग्जाम फियर. या so people, especially for an exam as competitive and sometimes as uncertain as NEET is, मेरा आपको सजेशन रहेगा कि share this session even with JEE friends of yours, even with people who are in class 9th and 10th, आपके छोटे भाई बहन, आपके juniors, आपके school friends, आपके teachers, because these topics that I bring to you every weekend are experienced by all of us. आज मेरा कोई एग्जाम होता है, I also go through exam fear. Yeah, but I tell you, these are tried and tested methods to be successful and to cope up with these afflictions of the mind. Is that clear? Now people, like I always say, वही योद्धा है, वही एक जीत हासिल करने वाला सोल्जर है जो एक्चुअल लड़ाई से पहले अपने आप को लड़ाई लड़कर तैयार कर लेता है ना? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिल दैट एवरी नीट रैंकर हैज टू गो थ्रू आर द टेस्ट्स. स्पेशली अगर May 7th 2023 को आपका एग्जाम है, यू शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द रैंकर्स पैकेज offered by Akash Byju's. The link is given in the description box of this session. उस link को click करो, and if you are opting for Rankers package, don't forget to use the code YTNEET10. This code is applicable, can be used by our subscribers of Akash Byju's NEET channel. You should also explore the smart playlist for all my botany lectures of class 11th and 12th, which happen on this channel, along with all these great teachers who are serving you for all your subjects through various series. Akash Byju's NEET का official telegram group join करने से you will get the notes, schedules, homework questions, announcements and everything possible. Please like this session and share this session, like I said, with everybody. Everybody today needs to get out of exam fear. If you haven't subscribed to our channel, you should. Let me know in the comment section if this session solved your biggest problem of exam fear. Exam fear एक generic term है, उसके कई रंग होते हैं. एक रंग ये होता है, my preparation is not adequate. प्रेपरेशन अगर इनएडिक्वेट होती है तो हमारा माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस हमें नॉक करती है दरवाजे पे कि भैया तेरी तैयारी पूरी नहीं है. तेरा दिल जानता है, हम किसी से कहें ना कहें, कि तूने उतनी तैयारी नहीं की जितनी की करनी चाहिए थी. सो दैट लीड्स टू एग्जाम फियर. दूसरा, अगर मैं तैयारी कर भी लेती हूँ, देन ऑल्सो आई हैव द फियर ऑफ नॉट बीइंग एडिक्वेट, ऑफ नॉट what will happen on the day. Yeah, doubt of self doubt जिसको बोलते हैं, doubt of your own performance. और दूसरा, खुद पर भी डाउट होता है. तीसरा फियर हमें एग्जाम का होता है, what if the paper is
डिफिकल्ट, क्वेश्चन पेपर इज डिफिकल्ट, मेरी तो पूरी तैयारी है, बट कभी कभी हमारा दिमाग बोलता है भाई उसी दिन जिस दिन एग्जाम है 7 मई को ही सबसे दुनिया का मुश्किल पेपर बन जाएगा, इट विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ डिफिकल्टी. सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ एग्जाम फियर? एग्जाम फियर के कॉजेज इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं. जैसा कि मैंने बोला, इंटरनल कॉजेज, योर ओन माइंड टेलिंग यू आर नॉट इनफ. Even if you have prepared, even if you've been studying, working hard since 2.5 years, you feel like, yeah, this is not enough, I'm not enough, I'm not good enough. External sources sometimes, जब हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से बात करते हैं तो हमें ऐसा रियलाइज होता है, यार फैमिली टेल्स अस, आवर ओन पीपल टेल अस, यार नहीं, यू नो व्हाट, टॉपर्स और रैंकर्स का तो इतना स्कोर आता है टेस्ट सीरीज में, उनको तो वो तो अब तक फिजिक्स की 3 रिवीजन कर चुके होते हैं, वो तो अभी तक बॉटनी के 5 रिवीजन कर चुके होते हैं. सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स समटाइम्स पुट अस ऑफ द ट्रैक. हाई एक्सपेक्टेशन, लैक ऑफ इनएडिक्वेट टाइम एंड प्रॉपर प्रिपरेशन. अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है, मैंने ऐसा देखा है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने आज तक रैंक पाई है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, मैंने आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैंने उनकी फियर को कम होते हुए देखा है जैसे जैसे टाइम पास आता है. इनफैक्ट बच्चों, जनवरी फरवरी में तो मेरे जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो फियर मोड में होते हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ लग जाती है कि हो ना हो जनवरी फरवरी मार्च मेरे को एक काइंड ऑफ लास्ट चांस मिल रहा है कुछ टॉपिक्स के लिए. वो अपने लास्ट राउंड में होते हैं, लास्ट रन होता है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, है ना. तो 11th-12th का सिलेबस जनवरी से मैं उनको लास्ट रिवीजन करने के लिए बोलती हूँ, एंड दे स्टार्टेड. लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आता है दे गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है, आपको एग्जाम फेयर नहीं छोड़ेगी. बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम, अक्सर ऐसा होता है, जितने भी मेरे ड्रॉपर्स बच्चे हैं, अगर वो कुछ मार्क्स से रह जाते हैं सिलेक्शन में, भाई 600 आ गया, 625 भी आ गया, 630 भी आ गया, जनरल कैटेगरी में हो, नहीं मिला है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है किसी एक साल, तो वो हमें थोड़ा परेशान करता रहता है. दैट इज क्वाइट नॉर्मल, एंड अ सिंपल फियर ऑफ फेलियर एग्जिस्ट इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड, है ना. तो तब क्या करना है? सिम्टम्स ऑफ, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू विल एक्सपीरियंस? सडनली आपको पढ़ते पढ़ते एंग्जाइटी होगी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन, आपका स्केड्यूल भी अच्छा चल रहा है, आपके डेली टारगेट्स भी पूरे हो रहे हैं. यहाँ पे मैं नाकाम या मैं आलसी या मैं डेली टारगेट्स पूरे ना करने वाली स्थिति की तो बात कर ही नहीं रही. मैं बात कर रही हूं कि एवरीथिंग इज ऑन द ट्रैक, तो भी यू कैन गो थ्रू दीज transient emotion. Good news is these look like very disturbing words, but I tell you they are transient, they are not permanent. It is okay, it happens to everybody, you are not alone. So now when all these symptoms and worries happen, what do? Children, one thing that my mother always told me when I went through all these symptoms and all these fears in life, she told me, at the end of the day, tell yourself, so what? So what? There is no exam. Now, children, there's a very fine line in giving your best in life and getting swayed, getting drowned in negativity. इफ यू आर गिविंग योर 100%, एक स्थिति तो ये है कि आपका मन हमेशा जानता है. अभी अपने दिल पे हाथ रखो. यू डोंट हैव टू टेल मी. इफ यू वांट टू शेयर विद मी, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन दैट यस मैम, वी नो दैट वी आर नॉट डूइंग इनफ. हाँ, बट अगर आपको ये मालूम है कि जो करना चाहिए, जो स्केड्यूल आपके टीचर्स ने दिया है, जो पाथ रोड मैप प्रिपरेशन का आपको टीचर्स ने दिया है, अगर आप वो दिल पे हाथ रख के अपने आप से बात करते हुए आपको लगता है कि यस आई एम फॉलोइंग दैट, है ना, तो आपको लाइफ में ये बोलना चाहिए, सो व्हाट. नो एग्जाम इज बिगर देन who you are. It is not the end of life. But condition क्या है? That your preparation पूरी आत्मा के साथ,
पूरे जोखिम के साथ आप अपना 100% दे रहे हो। मान लो अगर आप, अक्सर यही होगा कि आपकी प्रिपरेशन ही 100% नहीं है, तो उसी वक्त आप अपने आप से जब बात करते हो, मेरे साथ अभी कमेंट सेक्शन में बोलो कि हाँ मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं, तैयारी नहीं कर रही हूं, तो यू फाइंड वेज, यू हैव टू फाइंड वेज टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको रेगुलरली मिरर दिखाई दे, आपको रेगुलरली एक शीशा बताए कि यू स्टैंड हियर, इफ यू आर स्कोरिंग 500, 530, 550, द मॉक टेस्ट स्कोर serves as a mirror and tells you you are not doing the right things, you're not doing enough, and you use that to optimize, to become better, to take the positive steps in your preparation. तो इसलिए मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि टेस्टिंग इज ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस इन प्रिपरेशन। कई बार हमें लगता है हमारी प्रिपरेशन बहुत खराब है, लेकिन जब हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पे, अच्छा ऑल इंडिया तो you are not here to compete with 50, 100, 500 people. You are here to compete with 18 lakh plus people, maybe 20 lakh this year. तो अपने आप को रियलिटी वाले कंपटीशन में डालना है, then only we are in the presence of truth. तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में सपोज मेरा 600 प्लस भी स्कोर आ रहा है, आई नो दैट यू नो आई हैव दिस रोड टू रीच 650 प्लस। कई बार लगता है मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मैं क्लास में तो चैट बॉक्स में आंसर्स दे रही हूँ, लेकिन मेरा स्कोर आता है 450। तो ये मिरर देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देने के बाद मान लीजिए मेरा स्कोर बहुत ही कम है, आई गेट सच मैसेजेस रेगुलरली, या मेरा स्कोर बहुत हाई भी है, आपको अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट को एक न्यूट्रल ग्लास से देखना है। आपके ग्लासेस, आपका नजरिया अच्छे स्कोर को और बुरे स्कोर को कोई लेबल नहीं देगा। यू आर नो वन टू place a label or medal on yourself, oh very good, you are the best or you are the worst. ऐसा ना करें। स्मार्टली एक समझदार इंसान क्या करेगा, उस मॉक टेस्ट में इवन इफ आई हैव नॉट स्कोर्ड 720 out of 720, I am like everybody else. Understand that. अपनी मिस्टेक्स को निकाल के एनालाइज करना है। टेस्ट का मतलब लेबलिंग नहीं है। आपकी जिंदगी का लेबल सिर्फ और सिर्फ 7 मई 2023 को निश्चित होगा। उससे पहले आपको कोई जरूरत नहीं है अपने आप को बताने की कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आपका सिर्फ धर्म बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी मिस्टेक्स को, अपने टॉपिक्स को, जिनकी वजह से स्कोर कम आ रहा है, जिनकी वजह से नेगेटिव मार्किंग आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, निकाल के रिवाइज करें। तो ये तो आपकी अपना आपका जो ड्यूटी है वो आपने करनी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स है, और अभी जो एक हार्ड ट्रूथ है वो ये है कि ये शख्स आपके काफी क्लोज भी हो सकते हैं। कोई भी शख्स जो आपको अपने एक सेल्फ डाउट आपके अंदर क्रिएट कर रहा है, या आपको अपनी एंजाइटी, भाई कोई हमसे काफी क्लोज हो सकता है और उनको इस बात की चिंता हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि 7 मई को हम परफॉर्म ना कर पाए, हमारा स्कोर अच्छा ना आए। आर दे रबिंग देयर एंजाइटीज एंड टेंशंस ऑन यू? इफ दे आर, देन द सॉल्यूशन इज दैट यू जोन आउट फ्रॉम देम। हम लोगों के अगर साथ रह रहे हैं तो हम उनको कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट आई टेल यू पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी इन्फेक्शियस। अगर आप पॉजिटिव हो तो धीरे धीरे वो नेगेटिव इंसान आपकी पॉजिटिविटी में रंग ही जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी सिर्फ शब्दों में नहीं आएगी, आपके मॉक टेस्ट स्कोर से आएगी, मॉक टेस्ट स्कोर से आएगी। सो मेक श्योर दैट यू आर ओनली इम्प्रूविंग। ये जो बात है, डोंट स्टार्ट रीडिंग न्यू टॉपिक्स, ये आप 1 मार्च 2023 के बाद नहीं करेंगे। जनवरी फरवरी में आप फिर भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के वो टॉपिक्स जो आपने अच्छे से नहीं किए 11वीं में, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 11वीं में टॉपिक्स खाए हैं, जिन्होंने 11वीं में गलतियां की हैं,
तो मैं आपको February एंड दे रही हूँ टू डू दोज टॉपिक्स, लेकिन 1 मार्च 2023 के बाद आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे. रिविजन इज द की टू सक्सेस. जितनी ज्यादा, मिनिमम 3 रिविजन और मैक्सिमम का कोई नंबर नहीं है, आप वो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ बढ़ेगा ही. बिना रिविजन के एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होगी, बिना मॉक टेस्ट दिए सिलेक्शन नहीं होगी, बिना टाइम टेबल फॉलो किए सिलेक्शन नहीं होगी. सो टुडे आई वांटेड टू सर्व एज एन अलार्म क्लॉक, एज योर बेस्ट फ्रेंड, एज योर वेल विशर, एज योर पेरेंट, एज योर सिबलिंग, as your teacher, of course, and everybody possible who can make you realize the truth. Let me know in the comment section if this session opened up your eyes. मुझे comment section में बताइए अगर मेरी बात सुनकर आपको अंदर से realization हुई कि हाँ, ये काम मैं सही नहीं कर रहा था या कर रही थी, और आज से मैं determine करता हूँ कि I am going to walk in the right direction. I'll see you very soon with similar sessions. Subscribe to Akash Baiju's NEET channel and don't miss any of such very, very crucial sessions. Thank you.